Yes, sir. Yes, start. Okay. Am I audible? Yes. Very good evening to all the dignitaries gathered over here. I, Professor Kunal Indorkar, on behalf of Vishish School of Management, welcome you all on second Vishish Talk, an online guest lecture series on the topic Improve Immune System with the help of Yoga Asana. Yoga is a very ancient science as well as art, and it was developed before many thousand years by Lord Shiva himself. And today, in the pandemic situation, the yoga is the only spark of hope to cope up with this disease. According to Srimad Bhagavad Gita, Slok 58 and chapter 2nd, Shruti Vipratipanna Teyadas Tiyati Nishala Samadha Vachala Buddhistada Yoga Mapniyosya. That means when your mind and body is stable, then any kind of confusing words, statement cannot affect you at all. That means you are in the state of yoga. And now, allow me to take an opportunity to welcome our director, sir, Dr. Aslam Sikbal, and Managing Director, Dr. Naveen Naran, sir, and our special chief guest and speaker, Dr. Sanjay Maheshwari. Dr. Sanjay Maheshwari is yoga guru. He has more than 25 years academic experience, and he has published more than 30 research papers in national and international conferences. He possesses pedagogy in the field of IT. He is pedantic in the area of art in drawing, painting, and dancing. He has remarkable work in the field of yoga. Today, we would be blessed to receive your yogic words, sir. But before that, I would like to display Vish's glorious journey to you all. Just Sir, video yeah, please. just a second. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Very good evening to everyone. And I, on behalf of School of Management, welcome all the participants who are connected from different part of this country for this session. I also welcome the esteemed speaker of this session, Dr. Sanjay Maheshwari. He is my very old colleague since foundation stone is put of this college. And I also welcome our managing director, Dr. Naveen Naran, for this session. And I hope this session will be enjoyable, enlightened about our day-to-day activities and how to boost our immunity through the yoga asana. Because yoga एक ऐसी चीज है जो आपकी एक शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियों को स्थिर करती है, उसको बेहतर बनाने का काम करती है। बिकॉज क्योंकि आपकी स्वस्थ होता है ना, तो शारीरिक स्वस्थ और मानसिक स्वस्थ दो चीजें अलग अलग होती हैं, और योगा एक ऐसी चीज है जो दोनों चीज को बड़ा बैलेंसिंग करती है। तो आई होप कि एवरीबॉडी विल एंजॉय, और मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन सभी को बहुत ही लाभदायक रहेगा। एवरीबॉडी is stuck at home or just maybe going their offices and institutions during this unlock first phase 1 or 2. तो but still ये लॉकडाउन का पीरियड हो या अनलॉक पीरियड हो, ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा इंसान को करते रहना चाहिए ताकि वो मेंटल और फिजिकल रूप से हमेशा फिट रहे। नाउ ओवर टू संजय सर। धन्यवाद सर। प्रेजेंटेशन पीपीटी शो हो रही है रोबिन सर? Yes, sir. Yes, sir.
सबसे पहले तो मैं मैनेजिंग डायरेक्टर सर और विशेष फैमिली का वंदन और अभिनंदन करना चाहूँगा। मुझे बड़ी खुशी हुई जब इकबाल सर ने बोला कि हमारे कलीग्स पिछले 10 साल से हमारे साथ थे, क्योंकि मैं विशेष फैमिली का गेस्ट नहीं हूँ। मैं आज भी अपने को एक विशेष फैमिली का पार्ट मानता हूँ। तो तहे दिल से मैं पुनः सभी का धन्यवाद। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि साल भर बाद, आई थिंक 18 जून या 19 जून के आसपास ही मैंने रिलीव करा था, और वापस से पूरे 1 साल हो गया, 365 दिन मुझे पुनः विशेष फैमिली से रूबरू होने का मौका मिला। निश्चित सर और कुणाल सर, जो आपने कहा है गीता के अंतर्गत जो दोहा समझाया है कि योग 2700 ईस्वी पूर्व सबसे पहले पातंजलि ऋषि ने योग की प्रतिस्थापना की थी, और उसके बाद बहुत सारे ग्रंथ और बहुत सारे ऋषि महामुनियों ने उस पर समय समय पर उसमें कुछ नए एड ऑन किए हैं। जैसे कि हम समझ सकते हैं 84 लाख योनियां में परिवर्तित होने के बाद हमें मनुष्य की योनि में जन्म लेना होता है, और इसके अंतर्गत जो प्राण, जिसको कि हम आत्मा बोलते हैं, सोल बोलते हैं, उस प्राण को हम मन से जोड़ें, और तन फिजिकल, जब तन और मन दोनों का सहयोग होता है तो मोक्ष की या परमात्मा की प्राप्ति होती है। मोक्ष की या परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब हम यदि आज इम्यूनिटी की बात करें तो हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता थोड़ी सी वीक हो गई है। यदि मैं गूगल के मैप की बात करूं तो पिछले साल भर का 2019 का और 2020 का गूगल मैप का मैंने पूरा डाटा देखा था, तो उसमें 10% से 12% लोग इम्यूनिटी सिस्टम पर अवेयर थे। आज की तारीख में वो ग्राफ 35% तक चले गया है। तो हमारा एक सर से अनुरोध करना चाहूंगा मैं कि इसमें मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली, मतलब हम आध्यात्मिक तौर से भी योग के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भाई केवल योग को हम एक्सरसाइज समझें तो ये गलत है, कि योग कोई एक्सरसाइज नहीं है। यदि हम जिम की बात करें या अदर एक्टिविटी की बात करें, गेम्स की, एक्सरसाइज की, तो एक लिमिट और एज के बाद फिर वो मशीनों पर हम अपने फिजिकल वर्कआउट नहीं कर सकते। पर योग एक ऐसी विधा है +100, हमारी उम्र 100 के ऊपर भी हो जाती है, तो हम इसको सतत अपने रोजमर्रा की दिनचर्या में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो इसी से कुछ मैं अपने विचार के सामने प्रस्तुत करूं। आई होप कि सभी को बड़ा अच्छा लगेगा। अब थोड़ा सा आज के जो टॉपिक को देखकर मैंने एक डेफिनेशन ली है कि प्रतिरक्षा प्रणाली में अंग, कोशिकाएं, टिश्यू और प्रोटीन इत्यादि शामिल होते हैं। ये सभी तत्व मानव शरीर को सही तरीके से काम करने में सहायता करते हैं। अब इसमें एक प्रतिरक्षा तंत्र के कुछ अंग, पार्ट समझाए हुए हैं। उसमें है सबसे पहले कांसिस, है ना। सबसे ज्यादा यदि कोरोना की यदि हम आज बात करते हैं तो कोरोना में सबसे मेन चीज जो होती है कि हम एक दूसरे को फिजिकली टच न करें। WHO ने हमको बहुत सारे प्रिकॉशंस बताए हुए हैं, पर उसमें मेन सबसे जल्दी जो हमें वायरस लगता है वो नोजल के द्वारा, नाक के द्वारा आता है। तो जल नीति करके, षटकर्म में 2 विधा है। जल नीति करके हम वहीं उस वायरस को रोक कर सकते हैं, क्योंकि अभी वायरस के लिए कोई वैक्सीन नहीं बना है। नेक्स्ट हम बात करें थ्रॉट, उसके बाद उसका जो इम्प्रूवमेंट होता है गले से फास्ट होता है। जैसे ही वो गले में जाएगा और हमारे मल्टीविटामिन उसके अंतर्गत एड ऑन होते हैं तो वो बहुत टाइम से मल्टीप्लाई हो जाता है, और धीरे धीरे फिर वो उसका इफेक्ट हमारे लंग्स पर पड़ता है। फिर हमारे लंग्स को वो डैमेज करता है। जब वो लंग्स को डैमेज करता है तो उसका फिर हमारी डाइजेशन सिस्टम, पाचन प्रणाली पर उसका पूरा इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। तो आज योगाभ्यास में मैंने 2 सेशन रखे, 15 आसनों का एक सेट बनाया और 5 आसनों का एक सेट बनाया। यदि हमारे पास 15 से 20 मिनट का भी समय मिलता है तो जैसे कि डॉक्टर इकबाल सर ने कहा कि हमको न केवल कोरोना के डर से रोजमर्रा रेगुलर
डेली रूटीन की लाइफ में भी योग को अपनाना ही पड़ेगा और अपनाना ही चाहिए। यदि हम थोड़ा सा तनाव और जो न्यूज आ रही है कि अलग अलग सिटियों में कितना नुकसान हो रहा है कोरोना के द्वारा, कितनी डेथ हो रही है, इसको छोड़ दें, कुछ पॉजिटिव चीजों को सोचें। तो आई थिंक कि 11 मार्च 2020 को ये डिक्लेयर हुआ था, से लेकर आज मतलब 3 महीने और 5 दिन ऊपर तक हर फैमिली ने कम संसाधनों से जीने की एक हैबिचुअल बना ली है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मेरे घर में कि मम्मी को हर 15 दिन में मुझे शुगर की जांच कराना थी। अब उन्होंने मन से मान ले कि 2 महीने 3 महीने बाहर कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल नहीं है कि जनरल कोई नॉर्मल आपका सैंपल लेकर आपको टेस्ट कर लेगा। तो मतलब आपको विश्वास मानना ही पड़ेगा कि पिछले 3 महीने में एक भी बार उनकी शुगर की जांच नहीं हुई और वो वेल एंड हैप्पी है। इट मीन्स इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि फिजिकली हमारे को बीमारी बाद में आती है, मेंटली हमको बीमारी सबसे पहले आती है। और मेंटली बीमारी आने का सबसे मुख्य कारण है कि हमारी विचार, हमारी सोच, हमारी शक्ति। तो फिजिकली सिस्टम को हम एड ऑन करें, उसके पहले मेंटली सिस्टम को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम न केवल किसी भी तरह के वायरस, बाकी हेल्दी वेल्दी लाइफ के लिए अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं। अब इसमें जो मेन रोल होता है WC का, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं। जब भी कोई हमारे अंतर्गत वायरस की प्रतिक्रिया होती है तो ये उसकी सुरक्षा के लिए हथियार लेकर खड़ा होता है और उस वायरस से ये फाइट करता रहता है। इट मीन्स मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि जैसे ही मौसम चेंज हुआ और हमको जल्दी से एलर्जी के कारण सर्दी जुकाम हो गया, इट मीन्स हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कहीं ना कहीं वीक है ना। तो ये एक रेगुलर कॉजेज होता है कि हर 4 महीने में जब मौसम पलटेगा तो बॉडी के अंतर्गत जितने भी खराब पदार्थ हैं उसको, विजाती पदार्थ को निकालने के लिए बॉडी के अंतर्गत एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है। चूंकि हम आज बात करें तो रोग प्रतिरोध क्षमता को ब्लड जांच के द्वारा पहचाना जा सकता है ना। यदि ब्लड जांच नहीं है तो कुछ हमने 5 पॉइंट्स इसमें नोट करें। इन 5 पॉइंट्स में 2 या 3 पॉइंट्स भी रेगुलर हमारी लाइफ में वर्क कर रहे हैं। इट मीन्स हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सबसे फर्स्ट चीज है कमजोरी महसूस होना, टायर्डनेस। अब सपोज मैं कहीं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फिजिकली वर्कलोड इतना और मेंटली वर्कलोड इतना है, मैं टायर्ड हो रहा हूँ, तो दिस इज नॉट लो इम्यूनिटी पावर, मतलब ये कमजोर रोग प्रतिरोध क्षमता के गुण नहीं है। यहाँ टायर्ड का मतलब ये है कि रेगुलर मैंने थोड़ा सा काम करा, थक रहा हूँ, कल भी महसूस करा, परसों भी, 3-4 दिन से कि काम को स्टार्ट करा और मैं थक रहा हूँ, टायर्ड हो रहा हूँ। इट मीन्स कि मेरा कहीं ना कहीं इम्यूनिटी सिस्टम वीक है। तनाव महसूस होना, मतलब सपोज मैंने परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी, बहुत ज्यादा मेहनत करी और रिजल्ट मेरा फेलियर रहा, तो उस समय कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन्स का स्त्राव होता है, उसका स्त्राव यदि ज्यादा होता है तो फिर हम स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उस परिस्थिति में हम अपने आप को कैसे बिल्डअप कर सके, कैसे मेंटेन कर सके, ये हमें योग के, न केवल योग, हमारे खान पान, हमारे आचार, हमारे विचार और हमारे व्यवहार, इन सबको इंक्लूड कर कॉम्बिनेशन के साथ में हम इसको अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। कहीं कोई स्किन की प्रॉब्लम होती है या कहीं कोई चोट लग जाती है, तो चोट लग जाने के समय लंबे समय तक घाव नहीं भराता है, तो मेंटली हमारा ये माइंड आउट बन जाता है कि हमको शुगर की प्रॉब्लम है। तो कंपल्सरी नहीं है कि यदि घाव बहुत दिन तक नहीं भरा है तो मतलब हमको शुगर की प्रॉब्लम हो गई है। ये भी एक इम्यूनिटी सिस्टम है कि हमारी बॉडी के अंतर्गत जो हमारे सेल्स होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, जो वर्क करते हैं, वो घाव को भरने के लिए प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे। इट मीन्स हमारी रक्त की कणिकाएं, कोशिकाएं प्रॉपर काम नहीं कर रही है। तो ये भी एक इम्यूनिटी पावर सिस्टम का, एक वीक इम्यूनिटी सिस्टम पावर का लक्षण है। नेक्स्ट है पेट संबंधी परेशानी। नॉर्मली हम कुछ भी चीज
लेते हैं और इमीडिएट हमको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है या कुछ लूज इमोशन हो जाता है या कुछ इस तरह के बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो उसका भी यही है कि हमको इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सर्दी लगना, मुंह में छाले होना, मतलब यदि बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं तो पेट की गलती और गड़बड़ी से तो होते हैं, क्योंकि कहा गया है कि यदि आपका पेट सही वर्क नहीं कर रहा है, डाइजेशन सिस्टम सही वर्क नहीं कर रहा है, तो 100 तरह की बीमारियां हम अपने शरीर में उसका निमंत्रण दे देते हैं। तो जल्दी से हमको एलर्जी, डस्ट एलर्जी या गले में छाले हो जाते हैं और सर्दी लग रही है बार बार, इट मीन्स हमारे इम्यूनिटी पावर सिस्टम को हमको बढ़ाना पड़ेगा। योग इज ए साइंस। अब साइंस भी एक लिमिट के बाद रुक गया है, क्योंकि साइंस में ये समझाया गया, विज्ञान में, कि हम कितनी बार एक ही चीज का परीक्षण करेंगे तो रिजल्ट हमेशा सेम मिलेगा। पर योग को पराविज्ञान कहा है। पराविज्ञान क्यों कहा है? क्योंकि सपोज मैं बोलूं कि मेरी मम्मी मुझसे प्यार करती है, अब कितना प्यार करती है, मुझसे ज्यादा करती है, मेरे भाई से ज्यादा करती है, तो कोई पैरामीटर नहीं है। हम अनुसंधान की क्षेत्र की बात करें तो इसका कोई पैरामीटर या बैरामीटर आज तक नहीं बना है। तो इसी को मैं उदाहरण दे रहा हूँ योग की। जब हम योग के अंतर्गत जाते हैं और योग से ध्यान और ध्यान से समाधि की तरफ जाते हैं, तो जो आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा अभी साइंस ने, विज्ञान ने कोई पैरामीटर नहीं बनाया कि इस लिमिट तक हम उस स्केल को नाप सके। तो हम भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक इन सभी पहलुओं पर योग में काम करते हैं। मतलब योग को हम कतई एक्सरसाइज न समझें। योग एक्चुअल में युज धातु शब्द से बना है, और युज धातु शब्द का अर्थ होता है जुड़ना और जोड़ना, है ना। मतलब हम परमात्मा से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो हम मृत्यु, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, है ना। और करीब करीब हमारा सभी का एक ही लक्ष्य होता है कि हमको आखिरी में परमात्मा के चरणों में जगह मिले। तो उसका ध्येय क्या है? हमारा ये शरीर। और शरीर पहला सुख निरोगी काया। मतलब यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम सभी कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। गीता में भी कहा है योगस्थ कर्मेसु कौशलम, मतलब योग कार्य को करना कुशलता से ही अपने आप में एक योग है। शरीर, ऊर्जा, मस्तिष्क, भाव, ये चारों को बेनिफिट देता है योग, है ना। शरीर को बेनिफिट देता है कि कभी भी कोई नई बीमारी का आमंत्रण नहीं होगा। ये निश्चित बात है कि जो ऑलरेडी कुछ डिसीज हमारे साथ है वो उसको बढ़ने नहीं देगा। शनै शनै धीरे धीरे वो उसको खत्म करने का हम लगातार अभ्यास करते जाएंगे तो धीरे धीरे वो खत्म होते जाएगी। ऊर्जा का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। सपोज अभी नेटवर्क नहीं मिल रहा था तो बेटा बोला कि आपको तो सुबह ही करना था, तो इट मीन्स कि जरा सा भी कुछ इनबैलेंस होता है तो हमारा माइंड नेगेटिविटी पे बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। क्यों नहीं होगा? जो काम सुबह हो सकता है वो शाम को हो सकता है। जिस तरह हम सुबह भोर 4-4:30 बजे उठते हैं और जो एनर्जी रहती है, यदि हम योग और प्राणायाम करें तो 6 बजे भी उतनी एनर्जी से हम सबसे बातचीत कर सकते हैं और उतने ही फ्लो से 100% अपना देकर वर्क कर सकते हैं। देन मस्तिष्क, पैरेलल कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, दोनों को वो हमेशा एक परफेक्ट और वर्किंग एरिया में सही कार्य करने के लिए हमें मजबूती प्रदान करता है, और ये मजबूती हमें मिलती है इम्यूनिटी सिस्टम से। देन मनोभाव, हम माइंड में बना लेते हैं किसी भी पर्सन या व्यक्ति के लिए कि वो ऐसा होगा, है ना। तो हमारे अंतर्गत जब विचारों की कमी हो जाएगी, हमारे मस्तिष्क में जब प्राणों को हम साधना शुरू कर देंगे तो हम किसी के प्रति अच्छे या बुरे विचार कभी जनरेट नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। न हमारा गीता में कहा गया है कि किसी ने हमें कुछ गलत भी बोल दिया है, अवॉइड इट। किसी ने हमारी तारीफ भी कर दी है, अवॉइड इट। मतलब हम अपने आप को उस पोजीशन में, गृहस्थ आश्रम में रह के समभाव में अपने आप को
परफेक्ट बना सकते हैं कि हमको किसी की तारीफ से या किसी की बुराई से हमारे व्यवहार आचार विचार में हमें कहीं कोई फर्क ना पड़े। योग में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के बारे में बताया। उसके बाद बहुत सारे ऋषि मुनियों ने समय समय पर योग के अंतर्गत बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, है ना। मैं एक बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सबका लक्ष्य एक ही है। योग के अंतर्गत हमको परमात्मा की प्राप्ति, ज्ञान योग की बात करें, कर्म योग की बात करें, हठ योग की बात करें, भक्ति योग की बात करें, पतंजलि योग की बात करें, कुंडलिनी योग की बात करें, मंत्र योग की बात करें, लय योग की बात करें, राज योग की बात करें, जैन योग की बात करें या बौद्ध योग की बात करें, पर हम सबका लक्ष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति। अब एक छोटा सा उदाहरण समझ सकते हैं कि पर्वत की शिखा है, उस शिखा पर हमें परमात्मा से हमारा मिलन होगा, है ना। अब पर्वत पगडंडी से होकर भी जा सकते हैं, पर्वत पर कुछ सीढ़ियां बनी उससे भी होके जा सकते हैं, पथरीले रास्ते हैं उससे भी होके जा सकते हैं, पर सबका अंतिम लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन, मतलब जन्म मृत्यु के बंधन से हमें मुक्ति प्रदान करना। तो उसमें हमारे इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सा रास्ता चुने, है ना। क्योंकि जो बचपन से लेकर आज तक हमने अपने को जिस सिचुएशन में, जिस एटमॉस्फेयर में, जिस समाज में डेवलप करा है, तो हो सकता है कि मुझे पेंटिंग भी पसंद है, सर को म्यूजिक पसंद है। सबकी एक अपनी अपनी एक आर्ट और एक फॉर्म होता है, कहीं ना कहीं क्वालिटी होती है। तो जब हम बात करते हैं ज्ञान योग, मतलब कि यहाँ पर हमको अपनी सहजग और तीक्ष्ण बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमको किताबों को पढ़कर समझना होता है कि इसके द्वारा हम भगवान के मार्ग को कैसे प्रशस्त कर सकते हैं। स्वयं को जानने की उत्सुकता बनी रहती है हमारे मन में। नेक्स्ट, भक्ति योग, प्रेम और ईश्वर के प्रति निष्ठा और आस्था, ठीक है। सभी प्राणियों के प्रति निष्ठा और आस्था, है ना। एक मूक प्राणी को हमने देख लिया, वो कहीं बीमार पड़ा हुआ है और उसके प्रति प्रेम श्रद्धा नहीं है, और हम कहीं मंदिर में जाके प्रेम पूर्वक कुछ पूजा अर्चना या प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वो प्रेम निश्चल प्रेम नहीं कहलाएगा। मीरा ने प्रेम के द्वारा भगवान को पाया था, तो ये भी एक योग का मार्ग है। कर्म योग की बात करें, गीता में सारे 700 श्लोकों के 16 अध्याय में यही बताया गया है, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कि हमको कार्य तो करना पड़ेगा, है ना। अब सवाल ये होता है कि हम निष्काम कर्म करें। जब हमारी एक ऐसी दशा आ जाए कि हमको उस कर्म का फल संचित न हो, तो हम भगवान को बहुत आसान से पा सकते हैं, है ना। अब नॉर्मली कर्म, निष्काम कर्म, भाई मुझे अपनी फैमिली को चलाना है, अर्थोपार्जन करने के लिए काम करना है, तो वहां तो मेरा निष्काम कर्म नहीं हुआ कि मैं काम कर रहा हूं, उसके बदले में मुझे प्रतिफल में सैलरी मिल रही है। यहाँ निष्काम कर्म का मतलब ये है कि हम लालच और अपने अंतर्गत जितने भी गलत आदतें हैं, है ना, उनका त्याग करते जाए शनि शनि, धीरे धीरे, और इससे ऊपर उठते जाए, वो कर्मयोग कहलाएगा। यहाँ पर नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मैं बता दूं, पतंजलि योग, अष्टांग योग। मैं थोड़ा सा पतंजलि योग को ही अपने अंदर उस पथ पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। पतंजलि योग में 8 नियम, अष्टांग पतंजलि योग के 4 पाद हैं, उसमें 8 नियम को बताया गया है। सबसे पहला नियम है यम। नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, है ना। ये 8 नियम अष्टांग योग में बताए गए हैं। पतंजलि योग ने ये कहा है कि केवल योग करने से हम भगवान को नहीं पा सकते हैं, हमें यम का पालन करना पड़ेगा। अब यम के भी 5 नियम बताए गए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह, है ना। बस मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ इसको। नेक्स्ट, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय,
ईश्वर प्राणी धाम, ये 5 नियम बताए गए हैं। देन इसके बाद आसन, एक आसन को हम 1 मिनट से 3 मिनट कर कर यदि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे उस आसन को साध लेते हैं तो वो हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उस सिद्धि को खत्म करके हमको केवल ख्याति तक पहुंचना होता है। देन प्राणायाम, प्राणों को नियंत्रण करना, है ना। मतलब जब किसी की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या चेक करता है कि लंग्स, फेफड़े चल रहे कि नहीं, इसके अंतर्गत प्राण ऊर्जा बची है या न बची है। तो मन को काबू में करने के लिए प्राणायाम से अच्छा कोई दूसरा साध्य नहीं है। हम मन के अंदर रहते हैं जबकि हमको मन को काबू में करना है। हमारा मन कहा कि चलो आज होटल में खाना खाते हैं, अब क्या हुआ 3 महीने में तो एक भी संडे कहीं भी नहीं गए हम होटल में, तो क्या हमको वो हैप्पीनेस या खुशी प्रदान नहीं करी? मैं कहता हूँ ज्यादा मिली। आज दादा दादी को बच्चों के साथ, पोतों के साथ, सब परिवार के साथ बैठने का मौका मिला है 3 महीनों में। यदि हम उसको सकारात्मक रूप में सोचें तो हर नकारात्मक के पीछे सकारात्मक के बहुत सारे पहलू हैं, और इन्हीं सकारात्मकता को देखते हुए हमको अपने आप को, अपने इम्यूनिटी पावर को और अपने मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने के लिए बहुत मदद मिलती है। देन प्रत्याहार की बात करें तो हम अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये प्रत्याहार में आता है। आज पिज्जा खाने की इच्छा है, पॉसिबिलिटी नहीं है, है ना। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सिचुएशन ने हमको नियंत्रण करना सिखा दिया है कि जो हम चाहते हुए भी उस तरह से नियंत्रण न कर सकते थे। देन धारणा, हमको विभिन्न तरह की विभूतियां भगवान की तरफ से मिली हुई है। किसी एक ध्येय या किसी एक विषय पर हमको चित होकर काम करना होगा। अब धारणा की बात करते हैं तो धारणा के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ध्यान। सर मैं तो आंख मीच कर बैठ जाता हूं पर ध्यान ही नहीं लगता है क्योंकि मेरा चित्त तो भौतिक सुविधाओं में भिड़ा हुआ है। मैंने XYZ का पूरा ध्यान सेशन सीखा है पर मैं भी उस अवस्था में पहुंच ही नहीं पाता हूँ। व्हाट इज दिस? आपका बचपन से लेकर आज तक का पूरा डेवलपमेंट अलग सिचुएशन में हुआ है। जिस गुरु ने ध्यान की विधा बनाई है उसका रूल्स अलग था, वो उसकी बॉडी पर फिट हो रहा है। वो केवल आपको एक सीढ़ी बता रहा है, पर आपको अपने खुद के लिए खुद का ध्यान का एक प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा। दिस इज राइट वे, ये ध्यान का सही है। XYZ के ध्यान को समझो, सुनो, कोई गलती नहीं कर रहे हो, पर आप शनै शनै जैसे जैसे योग और प्राणायाम में आगे बढ़ते जाओगे, आपका खुद का क्रिएटिविटी माइंड आपके बॉडी के हिसाब से आपको सजेस्ट करेगा कि आपके लिए ये ध्यान की विधा परफेक्ट है। सपोज सूरज और चंद्रमा जो साक्षात देवता हैं, हम उनका ध्यान कर सकते हैं। नाभि, जहां से हमारा जन्म हुआ था, नाभि प्रदेश, वहां से हम नाभि कमल को देखते हुए अपना ध्यान को डेवलप कर सकते हैं। तो धारणा हो गई, ध्यान हो गया। ध्यान से भी परे हो जाए, अभी तो ध्यान में हमारा एकाकार चित्त है, अभी हमारा ध्यान में एकाकार चित्त है, या तो हम नाभि प्रदेश पर ध्यान लगा रहे हैं, श्वासों के आवगमन जावगमन, इनहेल एक्सहेशन, रेचक पूरक पर ध्यान लगा रहे हैं, पर इससे भी परे हम शून्य की स्थिति में चले जाते हैं, हम शून्य की स्थिति में चले जाते हैं, वो कहलाता है समाधि। देन हठ योग की बात करें, ये तो थे हमारे अष्टांग योग। हठ योग, स्वामी सात्माराम जी ने हठ योग के बारे में लिखा है, ह और ठ। ह मतलब चंद्र, ठ मतलब ठकार, हकार और ठकार, चंद्र और सूर्य। इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं हम। चंद्र मतलब लेफ्ट नोजल, सूर्य मतलब राइट नोजल। हमको जब दिन में हम वर्किंग डे में काम करते हैं तो हमारा लेफ्ट नोजल वर्क करता है ना, चंद्र बिंदु, इसको हम ईड़ा बोलते हैं। देन रात को जब सोते हैं
तो हमारा सूर्य स्वर काम करता है, इसको पिंगला बोलते हैं। ईड़ा और पिंगला को जब साध लिया जाता है, ईड़ा और पिंगला को जब साध लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ योगा, तो वो सुषुम्ना, वो जो हमारी स्थिति होती है वो सुषुम्ना की स्थिति होती है, इसको हठ योग। देन कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी मूलाधार से लेकर सहस्त्रधार चक्र तक हम ऊर्जा के द्वारा अपने आप को परमात्मा के शरण में जाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, वो कहलाता है कुंडलिनी योग। देन ध्यान योग, अभी हमने समझा है, जब हम ध्यान में एकाकार होकर शून्य की अवस्था में चले जाते हैं वो कहलाता है ध्यान योग। मंत्र योग, मंत्र शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, यदि मंत्र को साध लिया जाए तो भी हमें साधना में परफेक्शन आ जाती है, और साधना में परफेक्शन आने के बाद हमारा अंतिम लक्ष्य तो वही रहता है कि हमको परमात्मा से मिला। लय योग, जब हम लय योग की बात करते हैं तो हमारा मस्तिष्क को शांत रखकर हम ब्रह्म लोक जैसा प्रकाशमान रहते हैं, हमारे अंतर्गत एक नादानुसंधान, एक वॉइस आवाज निकलती है। ये प्रूव करा है रिसर्चर ने कि पूरे ब्रह्मांड में ओम का गुंजायमान है, पूरे ब्रह्मांड में ओम का गुंजायमान है। जितने ब्रह्मांड में भौतिक द्रव्य हैं उतने ही हमारे भौतिक रासायनिक द्रव्य हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में भी एक गुंजायमान होता है, और वो नादानुसंधान एक क्रिया होती है, उसके द्वारा हम उस लय योग को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैन योग बताया है, जैन लोग सबसे ज्यादा पालन करते हैं खान पीन का, और सुबह से शाम तक उनकी दिनचर्या अलग होती है, केवल एक ग्रास वो खाना खाते हैं, वो भी कहीं से मिला है, और उनका पूरा जीवन एक संत की तरह होता है। देन बौद्ध योग, भगवान बुद्ध ने एक अपनी शैली विकसित करी थी योग के अंतर्गत, जिसको विपश्यना का नाम दिया जाता है। विपश्यना ये धम्मगिरी में 10 दिन का कोर्स होता है। अब हम आते हैं इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाएं, तो हमने कुछ 15 आसनों का एक सेट तैयार किया गया है। एक आसन 30 सेकंड से 1 मिनट तक भी यदि हम करते हैं तो हमारे 15 मिनट, देन 5 मिनट रिलैक्सेशन के, 20 मिनट शवासन, और 10 मिनट मिनिमम बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, हम प्राणायाम करते हैं। तो सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, ये 30 मिनट आपके 24 घंटे के लिए आपको उत्साहित, ऊर्जान्वित और आपके रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे, है ना। तो इस तरह से देन हमारे पास कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है वर्किंग लाइफ में कि समय की बहुत कम समय होता है। उस केस में भी मैंने 5 आसनों का एक सेट में जो अभी बताने वाला हूँ वो बनाया है। उस 5 आसन को करने के बाद आप 5-10 मिनट प्राणायाम करते हैं, सफिशिएंट 10 मिनट भी आप समय को देते हैं, तो निश्चित रूप से न केवल रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी, आप स्वस्थ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और स्पिरिचुअल रूप से हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जब हम तीनों विधाओं में स्वस्थ रहते हैं तो रेगुलर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नया इन्वेंशन या क्रिएटिविटी हमारे अंतर्गत आती है ना। सबसे फर्स्ट है उत्तान पादासन। योग में मैं एक बात आप सबको बता दूं कि कहीं कहीं प्रकारांतर शब्द का मैं इसलिए उपयोग कर रहा हूं कि हर योग शिक्षक का एक अपना विधा होती है, एक अपनी विधि होती है, पर कहीं भी कोई गलत नहीं बता रहा है। इसमें कहीं भी हम अपने मस्तिष्क को सकारात्मक रखें। एक आसन को प्रकारात्मक तरीके से 2 या 3 तरीके से किया जाता है, पर मुझे जो गुरु मिले या जिनसे मैंने सीखा है उसमें मैंने पैरेलल सबसे ज्यादा फोकस अपने श्वास प्रश्वास पर किया, क्योंकि बॉडी में यदि मैं योग कर रहा हूं तो वो एक्सरसाइज का रूप है, और यदि मैं सचेत होकर श्वास प्रश्वास के साथ योग कर रहा हूं, इट मीन्स वो योग युज धातु, मतलब जिसको हमने कहा था जुड़ना, हमको आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए जुड़ना, हमको सारे जितने भी बेनिफिट है प्रभावपूर्ण उसका उपयोग मिले, इसलिए हमको थोड़ा सा उसको ध्यान से समझना होगा। सबसे फर्स्ट है उत्तान पादासन। यहाँ पर जो जमीन से पैर उठे हुए हैं वो
मिनिमम 20 डिग्री से 25 डिग्री तक उठे हुए हैं। हम पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथ हमारे जमीन पर हथेलियां रखी हुई रहेगी, थोड़ा सा हम अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे 15 डिग्री से 20 डिग्री तक, है ना। जब हम पैरों को ऊपर उठाएंगे तो इनहेल मतलब पूरक, योग की भाषा में बोले श्वास को लेना, है ना। मैं भी नॉर्मल बात कर रहा हूँ, श्वास को लेंगे, पैर को उठाएंगे, श्वास होल्ड करके रोक के रखेंगे, है ना। दिखने में एक्सरसाइज सो इजी, बट प्रैक्टिकली मेरा निवेदन है कि यदि आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुक रहे हैं, इट मींस आपकी इम्यूनिटी पावर कैपेसिटी बहुत अच्छी है। ये सबसे बेस्ट हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए है, छोटी आंत बड़ी आंत के लिए, पैनक्रियास के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण आसन है। रीढ़ को लचीला बनाने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण आसन है। पेट की कृमियां, कुछ कृमि कीड़े बोलते हैं, वो हो जाते हैं, उसके लिए सबसे फ्रूटफुल आसन है। तो उत्तान पादासन, फिर से मैं एक बार इसको बोलूंगा कि जब इसको करेंगे हम थोड़ा सा जमीन से पैर को ऊपर उठाएंगे, दोनों पैर के टखने और अंगूठे मिले हुए रहेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे और कुछ पल के लिए हम वहां पर रुके हुए रहेंगे। जब न रुक पाए तो धीरे से आहिस्ता से पैर को नीचे रखेंगे, पैर को जल्दी से न पटकेंगे। योग में महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि यदि किसी तरह की डिसीज है, ब्लड प्रेशर, शुगर, भगवान न करे किसी को न हो, पर यदि है तो डॉक्टर की सलाह लेकर सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कभी कोई ऑपरेशन हुआ है, सपोज घुटनों की प्रॉब्लम या रीढ़ की प्रॉब्लम है, तो दर्द के समय कोई भी योगाभ्यास नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण आसन विपरीत करनी। विपरीत करनी जस्ट लाइक इसके अंतर्गत जैसे हम शीर्षासन करते हैं वो सारे बेनिफिट मिलते हैं। विपरीत करनी, सबसे मेन इम्यूनिटी पावर की बात करें तो हमारा जो थ्रोट, गला होता है, वहां से कोई खराब बैक्टीरिया अंदर न घुस पाए, है ना, वो वापस से कफ या बलगम के द्वारा बाहर हो जाए, तो ये विपरीत करनी सबसे बेस्ट आसन होता है। इसके प्रभाव की हम बात करें तो थायराइड या पैराथायराइड, एड्रिनल ग्रंथि या पेनक्रियास, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। साथ ही हमारे फेफड़ों पर इसका प्रभाव पड़ता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, रक्त का प्रवाह पूरा हमारा मस्तिष्क पर आता है ना। तो रक्त का प्रवाह मस्तिष्क पर आने से हमारी कार्यशैली और हमारे इनोवेटिव और पॉजिटिव थॉट्स इंप्रूव होते हैं। सबसे मेन चीज इसमें सावधानी ये रखना है कि हृदय रोग या उच्च रक्तचाप के रोग हैं, वो किसी विशेषज्ञ की सलाह से इस आसन को करें। विपरीत करनी सबसे प्रभावपूर्ण आसन है। नेक्स्ट, इसी का अपोजिट पोस्चर है विपरीत करनी, मतलब हमने मस्तिष्क को पूरा नीचे की तरफ करा था, अब मस्तिष्क और रीढ़ को हम ट्विस्ट कर रहे हैं, है ना, मत्स्य आसन। मतलब ये एक आसन की श्रृंखला है। हालांकि इस कोरोना में हर लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योग और एक्सरसाइज से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, पर जो क्रम मैंने गुरुदेव से सीखा है या जो फिर मैंने महसूस करा है, लास्ट ईयर मैंने एक रिसर्च पेपर इंटरनेशनल योगा पे लिखा था, फर्स्ट प्राइज मिला था। मैंने कुछ 15 बच्चों पर इसका पूरा, जब तो कोरोना था भी नहीं, पर कि बच्चों को पढ़ते पढ़ते कैसे थक जाते हैं, क्यों नहीं पढ़ने में उत्साह होता है, क्यों नहीं परसेंटेज बना सकते हैं, क्यों मेमोरी लॉस रहता है, मेमोरी इंप्रूव नहीं हो पाती है, मेहनत करते हैं अपना 100% नहीं दे सकते। तो इस तरह से 15 बच्चों पे हमने 21 दिन तक वर्क करा था और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। तो मत्स्य आसन की हम बात करें, इसमें हम पद्मासन में बैठेंगे और धीरे धीरे कोहनी की सहारा से हम लेट जाएंगे। हमारा जो मस्तिष्क का पृष्ठ भाग है, सहस्त्रधार चक्र, इसको जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे और दोनों हाथों से अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर श्वास को नियंत्रित करेंगे, है ना, अभ्यंतर और अभ्यंतर, मतलब श्वास को अंदर रोकना या श्वास को बाहर रोकना, जैसा आपकी शरीर और सुविधा के अनुसार काम हो, वो मत्स्य आसन के द्वारा हमको उसको मेंटेन करना रहता है ना। दोनों हाथों से पैरों के अंगूठों का हम फिंगर लॉक करेंगे,
इसमें मेरुदंड पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, पीछे की तरफ वो मुड़ रहा है। तनाव, खिंचाव, दबाव, ये तीनों चीज यदि हमारे शारीरिक ऑर्गेन्स, बॉडी के पार्ट्स के साथ होगी तो निश्चित रूप से 100% हमें सभी तरह का शारीरिक बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं हल आसन, जिससे हल आसन नहीं लग सकता है, मतलब कि पैर जमीन पर टिकना चाहिए, अंगूठे जमीन पर टिकना चाहिए। यदि हल आसन नहीं लगता है तो हम अर्ध हल आसन भी कर सकते हैं। अर्ध हल आसन मतलब कि हमारा जो एंगल है पैरों का वो 90 की डिग्री में है ना। अब हल आसन ये रीढ़ को लचीला बनाता है, क्योंकि एक आसन सो बेनिफिट, एक आसन ऐसा नहीं कि इम्यूनिटी पावर पड़ा, आज हल आसन देख रहे हैं तो केवल ये हमारे को इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में ही सहायक होगा। ये हल आसन हमारे डाइजेस्ट सिस्टम, पाचन तंत्र को मजबूत करेगा, हमारे उत्सर्जन अंगों को प्रभावित करेगा। बवासीर और मधुमेह के लिए सबसे फ्रूटफुल बेनिफिशियल आसन है हल आसन। हमारे श्वास को और पटल मानसिकता को सुदृढ़ बनाने के लिए, क्योंकि इसमें भी मस्तिष्क पर रक्त का प्रभाव हो रहा है ना। तो इसका पूरक आसन है मत्स्य आसन या चक्रासन। हल आसन हम यदि पूरा नहीं लगा सकते हैं तो हल आसन को 90 की डिग्री तक, मतलब पैर को कमर से उठाकर अपन ऊपर तक ला सकते हैं 90, और जैसे ही हमने उसको झुकाया तो वो पूरा का पूरा जमीन पर टच हो जाएगा। प्रैक्टिस में भी परफेक्टनेस। भुजंगासन, यह पेट के बल किया जाता है, इसका पूरा भार हमारे नाभि प्रदेश पर होता है, शरीर के ऊपरी भाग को हमको इसको उठाना होता है। हम पेट के बल लेट जाएं, दोनों जो हमारी हथेलियां हैं चेस्ट के आसपास रखें, एक लंबी गहरी श्वास लेकर धीरे धीरे ऊपर उठने का प्रयास करें। 3 तरीके से प्रकारांतर किया जाता है। एक मैं बता रहा हूं, पेट के बल लेट जाएं, दोनों हथेलियों को चेस्ट के आसपास रखा, श्वास ली और नाभि न उठने पाई इतना थोड़ा सा ऊपर, भुजंगासन मतलब सर्प के समान हमारी आकृति हो जाए। दूसरा है दोनों हाथों को इंटरलॉक करके पीछे की तरफ हम लेकर गए और नाभि से ऊपर उठे और श्वास को अंदर लिया और श्वास को होल्ड करके रखा। तीसरा, इसी में भुजंग आसन का प्रकार अंतर है, हम हथेलियों को हवा में रखें, क्योंकि हमारा पूरा हल आसन के अंतर्गत उद्देश्य ये है कि हमारी रीढ़ और पाचन तंत्र मजबूत बने। जब पाचन तंत्र मजबूत बनेगा तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जितने भी अंदर क्रियाशील वर्ग होते हैं जो बायोलॉजिकल व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, वो हमें मजबूती प्रदान करते हैं। डब्ल्यूबीसी सेल के लिए हमें बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। नेक्स्ट, भुजंग आसन गुर्दे और यकृत के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। पवन मुक्त आसन डाइजेस्ट सिस्टम के लिए तो सबसे बड़ा बेनिफिट है। सबसे मेन हमारा जो थ्रॉट है, गला है, देन नोजल जहां से श्वास प्रश्वास करते हैं, है ना, इसको बहुत मजबूती और सुदृढ़ता प्रदान करता है। तो कहीं से कोई भी बाहर का वायरस यदि हमारे अंदर आता है तो वो फाइटिंग सिस्टम के लिए डब्ल्यूबीसी तैयार रहता है, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी पावर उस समय मैं एक लिंक रॉबिन सर को दे दूं, उसमें मैंने ये पूरे 15 आसन का एक वीडियो बनाया है, तो हम उस वीडियो के द्वारा भी देख सकते हैं। तो पूरे पीठ के बल लेट जाएं, धीरे से दोनों पैरों को मोड़ते हुए हम पास में लाएं और पैरों को उठाकर पहले पेट के ऊपर रखने का प्रयास करें। इससे पेट की चर्बी भी बहुत कम होगी, एक्स्ट्रा फैट वो भी बहुत कम होंगे। फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक करके घुटनों को पकड़ लें, है ना, और उसके बाद गर्दन को, चिन, ठोड़ी को घुटनों पर लगाने का प्रयास। प्रयत्न शैथिल्यम एक संस्कृत का श्लोक है कि जरूरी नहीं मैंने बोल दिया तो जो चीन है अपनी घुटनों पर लगना चाहिए। जितनी भी गर्दन हमारी उठ रही है, हम प्रयत्न कर रहे हैं, वहां तक भी हमको पूरा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर भी वही स्थिति है, जब हम ऊपर उठेंगे तो श्वास लेते हुए उठेंगे, जब हम रिलैक्स होंगे तो प्रश्वास करेंगे। योग का एक नियम है, हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो श्वास लेते हैं और नीचे की तरफ जब झुकते हैं तो प्रश्वास करते हैं।
पूरक और रेचक। यदि हम श्वास प्रश्वास के ध्यान के साथ योगाभ्यास करते हैं तो 100% हमें पूरा पूरा उसका लाभ मिलता है। देन नेक्स्ट वक्रासन। थोड़ी सी समय की कमी के कारण मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। समय 10 मिनट सफिशिएंट? 10 मिनट है मेरे पास? सर आराम से टेक योर टाइम सर। ओके, लॉट ऑफ थैंक्स। देन वक्रासन, हमारा जो पूरा सबसे बेस्ट आसन है वक्रासन। इसको तो हमको रेगुलर लाइफ में करना ही चाहिए वक्रासन को, क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी मेरुदंड जिसको बोला जाता है, जो ग्रीवा प्रदेश से लेके मूलाधार चक्र तक रहता है, पूरा शरीर पूरी बॉडी उस मेरुदंड पे वर्क करती है। साइंस ने भी ये प्रूव करा है कि मेरुदंड के अंतर्गत कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो योगा से हमारे 7 चक्र को कोरिलेट करते हैं। योगा से हमारे जो 7 चक्र हैं उसको कोरिलेट करते हैं, जिससे कुंडलिनी शक्ति को जागरण किया जाता है। तो वक्र आसन, हम दंड आसन में बैठेंगे, दोनों पैरों को फैलाएंगे, रीढ़ मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, दोनों हाथ पास पास में रहेंगे। राइट लेग्स, लेफ्ट पैर को मोड़कर हमने घुटनों के पास रखा, ठीक है। फिर जो पैर मुड़ा है उसका जस्ट पीछे वाला हाथ, बैक हैंड को हम पीछे की तरफ रखेंगे। श्वास भरते हुए, लंबी गहरी श्वास भरते हुए हम गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। इम्यूनिटी सिस्टम की बात करें तो जैसे ही श्वसन तंत्र प्रणाली, रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से बेनिफिशियल होता है। हमारी गर्दन पीछे गई तो हमारा जो एक थ्रॉट है, गर्दन है, गला है ना, जालंधर बंद, बंद की भाषा में मैं बोलूं तो ये बहुत सुदृढ़ एवं मजबूती प्रदान करता है। देन जिस क्रम से हम जाते हैं उसी क्रम से हम वापस भी आ सकते हैं। इसी क्रिया को हम राइट लेग से करा तो लेफ्ट लेग से करेंगे। देन उसके बाद आते हैं हम धनुरासन पे। हमारी जो पूरी स्थिति होती है धनुष के समान आकृति हो जाती है ना। यह नियमित अभ्यास करने से पेट के आसपास और जंघा की मांसपेशियां, सबसे ज्यादा जो वसा इकट्ठी होती है हमारी जंघा मूल पर और पेट के आसपास, सबसे फास्ट डेवलप होती है। इसको तो ये खत्म करता ही है, साथ में हमारे पाचन अंगों को भी ये मजबूत करता है ना। श्वसन प्रणाली में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हमने अभी पीठ के बल करा था, अब हम पेट के बल कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक आसन कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देना। पेट के बल लेट जाएंगे हम, धीरे से टखनों को हाथों से पकड़ेंगे और नाभि के ऊपर से हिस्सा और इधर जंघा से ऊपर के हिस्से को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पूरा शरीर का बैलेंस पृथ्वी पर नाभि प्रदेश पर होगा। आगे से और पीछे से हमारा पूरा हिस्सा उठा हुआ है। और लंबी गहरी श्वास लेकर कुछ क्षण, मिनिमम 30 सेकंड तो हमको रुकना ही है इस केस में। तब जाके हमारी श्वसन प्रणाली मजबूत होगी, हमारा डेफिनेट इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा। हमें किसी भी कार्य करने में, वो चाहे मानसिक हो शारीरिक, थकान का अनुभव नहीं होगा। चिंता और अवसाद, टेंशन जैसे कभी भी रोग हमारे अंतर्गत इंक्लूड नहीं होंगे। नेक्स्ट पश्चिमोत्तान आसन। ये फोटो गलत लग गया है। पश्चिमोत्तान आसन में हम पूरा आगे की तरफ झुकेंगे। पश्चिमोत्तान आसन में हम पूरा आगे की तरफ झुकेंगे, मतलब हमारा रीढ़, गर्दन, नोजल हमारे घुटनों पर लगेगी, है ना। आगे की तरफ झुकेंगे हम, जस्ट लाइक उसका उल्टा हल आसन करा, उसका उल्टा पश्चिमोत्तान आसन। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी श्वसन प्रणाली के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए। लंग्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है इसके द्वारा। पूरे शरीर की मांसपेशियों में इससे खिंचाव आता है। सिर और गर्दन में खिंचाव आता है ना। पश्चिमोत्तानासन में सिर और गर्दन में खिंचाव आता है, जिसके कारण हमारे तनाव और चिंता या अवसाद ग्रस्त
रोग की पीड़ा से हम परे रहते हैं। नेक्स्ट उष्टासन, हमारी आकृति ऊंट के समान हो जाती है, ठीक है ना। इसमें भी हम ध्यान से देखें तो हमारे लंग्स, फेफड़ों को जब लंग्स फैलते हैं तो श्वास ज्यादा अच्छे से हमारे अंदर आती है। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जब हमारे अंदर आता है तो हमारे हार्ट, हमारा जो पंप है, पंपिंग वर्क जो कर रहा है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है ना। आरबीसी में पूरे शरीर को वो आरबीसी रोटेट करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो उष्टासन में हम पहले घुटनों के बल सीधे खड़े हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे जहां तक कोशिश हो सके हम अपने हथेलियों को कंधों पर टिकाने की कोशिश करेंगे। यदि हम पूरा उष्टासन नहीं कर सकते हैं तो अर्ध उष्टासन कर कर भी हम दोनों हाथ को कमर पर रखकर थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकने का प्रयास करेंगे। बस अर्ध उष्टासन में भी हमें उतने ही बेनिफिट मिलेंगे जितने पूर्ण उष्टासन में हमें मिलते हैं। उष्टासन हमारे कंधों के लिए तो लाभदायक है, कब्ज के लिए बहुत फायदा है, गर्दन के लिए बहुत फ्रूटफुल होता है। देन करते हैं पादहस्तासन। यह सूर्य नमस्कार का भी कौन सा आसन कहलाएगा? कुणाल सर, सूर्य नमस्कार का कौन सा आसन कहलाएगा ये? अनम्यूट करता हूं कुणाल सर को। कोई बात नहीं। तीसरा आसन है सूर्य नमस्कार का पादहस्तासन। खड़े होकर दोनों हाथों को पहले ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, कानों से दोनों हाथ लगे हुए, गर्दन और कान एक साथ झुकते जाएंगे। यहाँ पर पहले हाथ चलेगी, गर्दन चलेगी, ध्यान नहीं, और प्रश्वास करते हुए झुकेंगे। मैंने पहले यही कहा है कि बहुत सारे योग वीडियो थेरेपिस्ट और सब अलग अलग चल रहे हैं, पर यदि श्वास प्रश्वास के साथ, लय के साथ यदि हम योग करते हैं तो वो निश्चित हमारे मन को प्रभावित करता है और मन को हम अपने काबू में कर सकते हैं। सिर को घुटने से लगाने का प्रयास, दोनों हथेलियों को पैरों के आसपास लगाने का प्रयास। यदि लगता है तो अंगूठों को छू सकते हैं, नहीं लगता है तो हम अपनी पिंडलियों को पकड़ सकते हैं। जैसे ही हम शरीर को ढीला छोड़ेंगे कमर से, तो वैसे ही हम नीचे की तरफ थोड़ा सा और झुक सकते हैं। यह तनाव और डिप्रेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन है। जैसा कि मेरी बात हुई थी डॉक्टर इकबाल सर से लास्ट में, तो हम इम्यूनिटी पावर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, साथ में हम अपने तनाव को, क्योंकि तनाव जरूरी नहीं कि हमारा स्वस्थ शरीर है तो हम एकदम स्वस्थ हैं, शरीर स्वस्थ है पर विचार अस्वस्थ है, तो धीरे धीरे वो स्ट्रेस हमें फोबिया के रूप में और डिप्रेशन के रूप में हमको हर पॉजिटिव चीज से नेगेटिव चीज के लिए इम्प्रूव और प्रेरित करता है। तो इसमें भी ब्लड का जो रक्त कोशिकाओं का रोटेशन है हमारे मस्तिष्क पर आ जाता है, तो हम अवसाद की अवस्था से परे होते हैं, कभी भी हमें अवसाद नहीं हो सकता है। देन हम ताड़ासन की बात करें, ये तो दिन में 4 बार कर सकते हैं। जब उबासी आना शुरू हो जाए या हमें लगे कि हम बहुत टायर्ड दिख रहे हैं, तो हमारे मेरुदंड को और हमारे एक एक अंग जो कहीं कहीं बैठकर शिथिल हो जाते हैं या कहीं कहीं रक्त का प्रवाह रुक जाता है, तो पर्टिकुलर उस अंग में दर्द होने लगता है, या कहीं कभी भविष्य में पैरालिसिस तरह की बीमारियां हमारे अंदर न हो, तो दिन में 4 प्रहर हम ताड़ासन कर सकते हैं। ऐसे योगाभ्यास का ये नियम है कि खाने के 4 या 5 घंटे के बीच में गैप होना चाहिए, और हल्का नाश्ता करते हैं तो 1.5 से 2 घंटे की गैप होना चाहिए। देन ताड़ासन में हम सांधे आगे से हाथों को ऊपर ले जा सकते हैं, दाएं बाएं से हाथों को ऊपर ले जा सकते हैं, हथेलियों को ऊपर की तरफ क्लॉक करके हथेलियों की दिशा आसमान की तरफ और शरीर को तानने की कोशिश। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जब हम पंजों के बल पर आते हैं, एड़ियों को ऊपर उठाते हैं, तो श्वास गहरी लेना होगी, हमको लंबी और गहरी श्वास लेना होगी। जैसे ही हम हाथों को नीचे लाएंगे, उसके बाद एड़ी को नीचे लाएंगे, उसके बाद प्रश्वास करेंगे। इतनी देर तक यदि हम श्वास को होल्ड करते हैं तो हम पूर्ण तरीके से, लाइट चले गई है बट आवाज आ रही होगी आई थिंक मेरी, जी सर, है ना। तो हम पूरी तरीके से हम इस आसन का बेनिफिट ले सकते हैं, ताड़ासन का।
अगेन रिपीट इट, मैं फिर करूँ इसको रिपीट इट, कि जैसे ही ताड़ासन की पोजीशन में आए, हमारी एड़ियां ऊपर हो, हमारे पंजे जमीन से लगे हो, हम एक लंबी गहरी सांस लें, फिर जैसे ही हम हाथ को नीचे करें, फिर श्वास को बाहर निकाल लें, फिर एड़ियों को जमीन पर लगाएं, है ना। तो ये श्वास के साथ, लय के साथ करने में डेफिनेट 30 मिनट से 30 सेकंड से 3 मिनट तक करते हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चनर बनाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि 7 दिन के बाद ही आपको अपने अंदर के प्रभावपूर्ण इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट, पर्वत आसन। हमारी जो आकृति है वो पर्वत के समान हो जाए, है ना। हमारी आस्थिति और हमारा जो पूरा शरीर है वो एक पर्वत के समान दिखाई दे। इसमें हमारे कंधों को मजबूती मिलेगी, हमारे मेरुदंड को मजबूती मिलेगी और हमारे जंघामूल को मजबूती प्रदान होगी। पर्वत आसन को वियोगासन का भी नाम दिया गया है। देन सबसे फ्रूटफुल आसन है शशांक आसन। शशांक आसन की हम बात करते हैं तो खरगोश के समान हमारी आकृति रहती है। ये उन 5 आसनों में शामिल किया गया है शशांक आसन, जिसके द्वारा हम अपने इम्यूनिटी पावर, अपने इम्यूनिटी शक्ति को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं वो 5 आसन के नाम अब आपको बता रहा हूँ। पर्वत आसन, भुजंग आसन, शशांक आसन, बाल आसन और गोमुख आसन। गोमुख जिसमें कि हमारी गाय के समान आकृति रहती है। ये 5 आसन हमारे लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहते हैं। मैंने गूगल लिंक भी बनाई है, उसमें सारी डिटेल्स आसन और उसके बेनिफिट दिए हैं, मैं वो भी शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट, सबसे हम आखिरी में आते हैं गोमुख आसन। हमारी जो स्थिति है, गाय के मुंह के समान हमारे पैर के जो घुटने हैं वो रहते, इसमें घंटों ऋषि मुनि बैठकर तपस्या करते थे। छात्रों के जीवन के लिए यह सबसे फ्रूटफुल आसन है गोमुख आसन। ब्रह्मचारी व्रत के लिए सबसे फ्रूटफुल आसन है गोमुख आसन। गो शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है प्रकाश, हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला गोमुख आसन। जो पैर हमारा ऊपर रहता है उसी हाथ को हम ऊपर से पकड़ेंगे और जो पैर नीचे रहता है उसको नीचे से, हमने दिया हुआ है सेकंड, आप चित्र देख सकते हैं, उसमें इंटरलॉक करना पड़ेगा। हमको आपस में हथेलियों को इस तरह से इंटरलॉक करना होगा। यदि इंटरलॉक नहीं होती है तो हम अपनी हाथों की पोजीशन ऐसी ही रख सकते हैं। कंपल्सरी नहीं कि हर साधक के पीछे हाथ इंटरलॉक हो जाए। महत्वपूर्ण बात गोमुख आसन में यह है कि आप देख रहे हैं कि कोहनियों से मैं सर को प्रेशर दे रहा हूं। मतलब सपोज हम मान लेते हैं कि ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, इन दोनों को फाइटिंग करवाना है। इस तरफ धक्का दिया, ये इस तरफ धक्का दे रहा, तो दोनों में प्रेशर होना चाहिए, तब गोमुख आसन का बेनिफिट मिलेगा। सारांश में समझाऊं तो मस्तिष्क को पीछे की तरफ धकेलना और कोहनी से आगे की तरफ धकेलना, इन दोनों के बीच परस्पर जो प्रेशर रहेगा वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, नोजल और थ्रोट सिस्टम को वो बड़ा महत्वपूर्ण इफेक्टिव प्रभाव देगा। साथ में हमारे लंग्स, फेफड़ों को मजबूती प्रदान करेगा। साथ में हमारे डाइजेस्ट सिस्टम, क्योंकि हमारी जो आकृति है वो गोमुख में बैठे, उसको प्रभावपूर्ण तरीके से हमें बेनिफिट प्रदान करेगा। देन जब योगाभ्यास करें तो 5 मिनट का शवासन करना आवश्यक है। जितनी भी हमें ऊर्जा मिली है उस ऊर्जा को शरीर से बाहर ना निकलने दें, वो ऊर्जा हमारे सारे शरीर के अंगों पर प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य कर सके। शवासन को 5 मिनट में, 10 मिनट में करने से हम 1 घंटे से 2 घंटे की हमारी नींद की पूर्ति कर लेते हैं। कहते हैं कि अच्छे योगाभ्यासी 4 या 5 घंटे की निद्रा में 6 या 7 घंटे की पूर्ण निद्रा को ग्रहण कर लेते हैं। केवल बिस्तर पे सोना या लेटना ही निद्रा नहीं होती, हमारी निद्रा में हमारा चेतन और अवचेतन मन दोनों ही निष्क्रिय हो जाए,
है ना। इसमें एक एक अंगों को शिथिल किया जाता है, वो शवासन कहलाता है। एक एक अंगों को शिथिल किया जाता है। उसके बाद दो महत्वपूर्ण बात बस हो रही है, जलनेति, कपालभाति। जलनेति एक ऐसी नेति है जिसके द्वारा नासिका के मार्ग से नथुना के द्वारा जितना भी बलगम है उसको बाहर किया जाता है ना। ये किसी योग के प्रशिक्षक के साथ ही सीखना चाहिए हमें, पर इससे हमें कभी भी किसी भी तरह के वायरस हमारे बॉडी को इफेक्ट नहीं करेंगे। देन कपालभाति, हमारा जो कपाल प्रदेश है इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो कपाल है ये हमारे विचारों को तीव्रता से आने और जाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है, और शनै शनै धीरे धीरे इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। मैं प्राणायाम की विधि अभी नहीं बता रहा हूँ। देन इसके बाद आता है निष्कर्ष। हम निष्कर्ष की बात करें तो 5 चीजों को हमको बहुत ध्यान से महत्वपूर्ण तरीके से संजय सर, इंटरप्ट करूंगा आपको बीच में। मेंटल हीलिंग बैलेंस, जो मेंटल लाइफ है ना, ठीक है कोई बात नहीं, हो गई मेरी पीपीटी खत्म, डोंट है ना, कर सकते हैं रॉबिन सर, इसको ऑफ, पीपीटी को ऑफ कर दीजिए। अब हम कंक्लूजन की बात करें, सबसे आखिरी में मैं कंक्लूजन पे आता हूँ। कंक्लूजन की हम बात करें तो 5 चीजें हमारे लिए प्रभावपूर्ण रहती है। सबसे मेन चीज इसमें है हम मेंटेन रखें लाइफ स्टाइल को अपनी। हमारी लाइफ स्टाइल कैसे, ऑलमोस्ट लोगों की ये 3 महीने और 6 दिन में लाइफ स्टाइल चेंज कर दी है ना। देन बूस्ट योर इम्यूनिटी पावर, हम अपने इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाएं। बिल्ड साइकोलॉजिकल रिलीजेंस, हम तनाव के कोई भी लक्षण को अपने अंदर आने न दें। इस तरह का हमारा लाइफ स्टाइल हो। सिंपल सी बात है, किसी भी तरह के नुकसान और फायदे में हम अपने आप को सम अवस्था में रखें। सिंपल सा शॉर्टकट में एक वर्ड है ना। एक बहुत पुरानी पिक्चर याद आ रही है मुझे इस बात से लेकर, मुझे पिक्चर का नाम तो याद नहीं है, बस उसमें एक सीन था, वो गाना भी याद आ रहा है कि वो मेरी जोरत जफी तुझे मालूम नहीं तू कितनी हंसी में जवा। पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा अभी। उसमें एक सीन था, वक्त, बिल्कुल सही बोला सर आपने। वक्त में 1 सेकंड का एक ऐसा वक्त आता है कि वो 0 से 100% पे जाता है और वापस से 0 हो जाता है, जब उसका पूरा व्यापार, घर सब नष्ट हो जाता है, बच्चे बिछड़ जाते हैं, और वो हंसता है तो कोई पड़ोसी पूछता है कि आप सही हैं, तो वो हंसते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे भगवान ने एक चांस दिया है कि वापस में 0 से अपने आप को 100 नहीं 200% करके दिखाऊं। तो ये कब होगा, जब हमारा माइंड का बैलेंस सही हम इंप्रूव कर पाए। देन बी पॉजिटिव, हमेशा हमको सही और सकारात्मक रहना है। अंत में मैं ये एक श्लोक से इसका समापन करना चाहूंगा। नास्ति माया समम पापम, नास्ति योगात परम बलम, नास्ति ज्ञानात परो बंधुर्नाहत करात परो रिपो। मतलब माया के समान दुनिया में कोई पाप नहीं और योग के समान दुनिया में कोई शक्ति नहीं। मैं पुनः सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पूरी विशिष्ट फैमिली जिसमें कि मैं भी इंक्लूड हूँ, तहे दिल से मैनेजिंग डायरेक्टर सर और डायरेक्टर सर और सभी विशिष्ट फैमिली का मैं कृतज्ञ रहूँगा। और मुझे दिल से बड़ी खुशी है कि काफी दिनों बाद सभी से रूबरू होने का मौका मिला, और मैं आपके फीडबैक के लिए प्रतीक्षारत रहूंगा। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Of course, your yogic words will improve our immune system. I'm certain. नहीं, Now I am new I and learner, but yes, sir. I am new and Okay. learner, but मुझे कहते हैं
ना कि उत्साह को बढ़ाती है। मतलब डॉक्टर इकबाल सर ने जो बोला कि हम कलीग रहकर हमने मतलब काफी कुछ सीखा है और आज भी सीखते आ रहे हैं। रॉबिन सर के साथ भी काफी समय हमने अच्छे से बिताया है। तो निश्चित कहीं ना कहीं ये आप सबकी एक अच्छी उत्साह, ऊर्जान्वित चेतना और सर का सपोर्ट के कारण ही मैं कंटिन्यूएशन अपनी शिक्षा को वहां पर रहते हुए कंटिन्यूएशन कर पाया और आज इस मुकाम पर मैंने पहला चरण रखने की कोशिश करी है। संजय सर, आवाज आ रही है? हाँ सर, क्वेश्चन आंसर्स राउंड कर लें थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। जो भी पार्टिसिपेंट कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो अपना माइक अनम्यूट करके सर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। If any of the participant have any question. हेलो संजय सर। जी सर। हेलो संजय सर, नमस्कार। नमस्कार। मिश्रा बोल रहा हूँ, कॉमर्स डिपार्टमेंट से। आपकी मुलाकात अपनी हो चुकी पहले भी। जी हेलो सर, जी सर। सर, जी मेरा एक प्रश्न है। ये जब योग क्रिया जब स्टार्ट करते हैं अपन, तो क्या वार्म अप होना जरूरी है या बिना वार्म अप हुए अपन डायरेक्ट वो योग स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ देखो, हम अंग्रेजी की भाषा में वार्म अप बोलते हैं, योग की भाषा में सूक्ष्म क्रियाएं बोलते हैं। ये आप मानोगे या विश्वास नहीं करोगे कि सपोज मैं एक छोटा सा उदाहरण 1 मिनट के लिए देता हूँ कि हमारी मम्मी नियर अबाउट 65 के आसपास है, हार्ट अटैक आ चुका है, पर मम्मी की और मेरी मनोशक्ति से हमने बाईपास नहीं करवाया उनका, क्योंकि हर 15 साल बाद बाईपास रिपीट हो जाता है। ये बिल्कुल फेक बात है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि सूक्ष्म क्रियाएं उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनको कोई डिसीज है ना, वो इतनी सारी योग को नहीं कर सकते हैं। पर जो आपका क्वेश्चन है मैं उसको जवाब दे रहा हूँ। साथ में मैंने एक और जवाब दे दिया है कि हम जब योग करते हैं तो सबसे पहला रूल तो ये होना चाहिए कि सुबह भोर बेला में 4:30 से 5 बजे तक हम सारे कार्य से निवृत्त होकर नहा धोकर योग करें, है ना, स्नान आदि कर कर, तो एनर्जी का फ्लो अच्छा रहेगा। दूसरा, हम सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो वार्म अप हो जाता है। और उसके बाद हम जब योग करते हैं तो योग मतलब यूज धातु से बना है, मतलब जोड़ना। तो हम यहाँ तो योग कर रहे हैं, मन हमारा जा रहा है कि नीचे फ्रूट कतरा के नहीं कतरा वाइफ ने या मम्मा ने, तो वो बैलेंस इनबैलेंस न हो, तो सूक्ष्म क्रियाएं तो करना ही चाहिए। दूसरा, सूक्ष्म क्रियाओं का महत्व यह है कि मैंने कहा कि अर्ध हलासन या अर्ध उष्टासन, निश्चित आप 50 नहीं, मेरे साथ में ऐसे भी मेरे सर जो हैं मेरे से बड़े उम्र के 70 साल 75 साल के, उन्होंने शीर्षासन सीखा। 70 साल की आयु में आने के बाद शीर्षासन करना इज नॉट सो इजी, तो उसकी देन सूक्ष्म क्रियाएं, तो सूक्ष्म क्रियाएं तो करना ही चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर संजय। एक प्रश्न और था सर मेरा, बस छोटा सा। जी सर। ये अक्सर ये कई लोग जैसे योग करते समय एक श्वास पे बहुत ध्यान देते हैं, सांस पे। तो उसमें ये कहा गया है कि कुछ टाइम से कुछ सेकंड में सांस लेना है, फिर कुछ सेकंड रोकना है, और फिर कुछ जितने सेकंड में आपने सांस ली है उतनी सेकंड में आपको वापस सांस छोड़ना है। ये थोड़ा सा सांस का जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन, वो थोड़ा सा मेरे को और बता दें, बस उसके बाद मेरी और कोई जिज्ञासा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, काफी अच्छा प्रश्न है। क्योंकि आज समय बहुत ज्यादा हो गया था तो मैं भी पॉसिबल हुआ तो एक प्राणायाम का सेशन ले लेंगे हम, उसमें श्वास की गति को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पर यहाँ मैं बता दूं कि आज हमने जो योगासन सीखे उसमें योगासन जो सीखे हमने, सबसे महत्वपूर्ण बात आज योगासन में जो सीखे कि जब भी हम ऊपर की तरफ उठेंगे श्वास को लेना है और श्वास को होल्ड करके रखना है ना, अंतर कुंभक जिसको बोला जाता है। और जैसे ही शनै शनै बहुत आहिस्ता से धीरे धीरे हम जब नीचे जाएंगे, प्रश्वास करना है, श्वास को छोड़ना है। अब रहा सवाल श्वास के अनुपात का, तो ये नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम या प्राणायाम की बात करें तो उसमें जब हम प्राणायाम मुद्रा बनाते हैं, है ना, जब प्राणायाम मुद्रा बनाते हैं तो हमारे प्राणायाम मुद्रा बनती है अंगूठे के मूल भाग पर हमको अपनी फर्स्ट और सेकंड अंगुली को रखना होता है, मध्यमिका और तर्जनी को।
अनामिका से हम नोजल को क्लोज करते हैं। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ 1:2:1। नॉर्मली यदि आप जब भी कहीं फुर्सत में बैठे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इन ए डे 4 टाइम्स, 4 बार भी आप 5-5 मिनट के लिए केवल श्वास प्रश्वास पे ध्यान देंगे, आप 100% मतलब इम्यूनिटी पावर को बहुत तेजी गति से बढ़ा सकते हैं। एक पल में श्वास को लेना, 2 पल में श्वास को होल्ड करना और वापस एक पल में श्वास को बाहर निकालना। नए साधक के लिए 1:2:1, राइट। हम नॉर्मल बैठे हैं, मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल। श्वास ली, श्वास को होल्ड करा, श्वास को छोड़ दिया। अब यहाँ पर श्वास की गति को ध्यान करते समय जैसे फुग्गे में हवा भरते हैं और इमीडिएट फुग्गे को हम छोड़ते हैं, तो देखना धीरे धीरे उसकी हवा बाहर निकलती है, ठीक है। और हमारी दिनचर्या या हमारी ऐसी गलतियां हैं, हमको प्राणायाम में सिखाया है कि श्वास की आवाज ही नहीं आना चाहिए। हम कहीं योगा को स्क्रीन पर, टीवी पर या किसी यूट्यूब में देखते हैं, श्वास की आवाज करते हैं, तो ये मन को कभी स्थिर नहीं कर पाएगा। मैं किसी को गलत सही नहीं ठहरा रहा हूं यहाँ पर, है ना। पर नॉर्मल सेकंड रूल ये है श्वास का। नॉर्मल योगासन में तो श्वास की गति बता दी, ये प्राणायाम, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम की हम बात कर रहे हैं, श्वास की गति। तो 1:2:1, 7 दिन तक हमने इसकी प्रैक्टिस करी। 7वें दिन के बाद 1:2:4:2:1, अगेन रिपीटेड। 5 शब्दों में मैं बात करूं, 1 2 4 2 1। 1 मतलब हमको रोकना है, 2 मतलब श्वास को लेना है, 4 मतलब होल्ड करना है, 2 मतलब प्रश्वास करना है, 1 मतलब होल्ड करना है। अब यहाँ होल्ड का मतलब आप बहुत ध्यान से समझना, यह बाह्य कुंभक, यहाँ पे हमने करा पूरक, श्वास को लिया, ये आंतरिक कुंभक, 4 टाइम तक श्वास को रोकना सबसे ज्यादा। देन जब होल्ड ना हो पाए तो वापस प्रश्वास करना 2 रेशों में, ठीक है। देन वापस से होल्ड करना, बाह्य कुंभक 2 बार बाह्य कुंभक लगेगा, 1 बार अंतर कुंभक लगेगा। इस तरह से 1:2:4:2:1। हम गिनती के अनुपात में मैं समझाऊं, 5 मिनट तक मैं श्वास रोक रहा हूँ, 1 2 3 4 5 तक रोकी। अब मैं 10 की गिनती तक श्वास लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1:2 का रेशो हो गया, राइट। अब 20 की गिनती तक अंदर होल्ड करा, 1 2 3 4 5 8 19 20। 20 की गिनती तक रोका, अगेन बाहर निकाल रहा हूं, प्रश्वास 20 की गिनती तक, मतलब 2 का रेशो, क्योंकि 5 से शुरू करा था। फिर अगेन 1 का रेशो 5, मतलब 1:2:4:2:1। इस तरह से हम श्वास की गति को लयबद्ध तरीके से, पूर्ण तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। ओके सर, धन्यवाद सर। जी, कैन यू हियर मी? गुड इवनिंग सर। यस सर। मैं गौतम बोल रहा हूँ, आप सुन सकते हैं? जी सर। बताएं। नहीं, हाँ बोले सर। ये बताइए, योग में स्पाइनल कॉर्ड पर बड़ा प्रेशर पड़ता है, दैट इज अ वेरी की फिजिकल लोकेशन ऑफ ए स्पाइनल कॉर्ड। ये बताइए, जो स्पाइनल बायोफिडा जिनका वीक हो जाता है, स्पाइनल बायोफिडा यू नो इट, उनको योग पर योग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ओनली स्पाइनल बायोफिडा, नथिंग बियॉन्ड दैट। नहीं, एक्चुअल में जो मेरुदंड है उसका पूरा एक्चुअल में मैप यदि हमारे सामने है ना, और उसको किस तरह की डिसेज है, और साथ में पैरेलल उसको कोई बीपी तो नहीं हाई और लो, ठीक है। और अब ये जो आपने क्वेश्चन करा सर, थेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट। तो एक अच्छे थेरेपिस्ट को पहले, जैसे कि एक शल्य चिकित्सक को मैंने सपोज MBBS 5 साल तक करा और कहीं प्रैक्टिकल कहीं भी कुछ नहीं करा, तो मैं शल्य किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो जो आपके क्वेश्चन है, मैं उसी का आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये थेरेपिस्ट वर्क है। यहाँ पर थेरेपिस्ट को पूरा
ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले उसका डेली रूटीन में वो कहीं डल्लप के गद्दे पर तो नहीं सो रहा है, उसको लकड़ी के तख्त पर एक कंबल बिछाकर सोने की उसकी जीवन शैली को बदलना होगा। उसके बाद वो पेन किलर कितनी खा रहा है, उसके बाद उसका जो स्ट्रक्चर है एक्सरे से पता पड़ेगा कि वो लेफ्ट है, बैक है, राइट है, वो किस तरह से बाउंड हो रहा है। क्योंकि हमारे मेरुदंड में एक गादी होती है कोशिकाओं के बीच में, है ना। हम नॉर्मली आगे की तरफ ज्यादा झुकते हैं और आगे की तरफ वर्क ज्यादा करते हैं, तो उसमें खिंचाव होता है। तो खिंचाव होते होते उसमें गैप हो जाती है और फिर शल्य चिकित्सक के द्वारा स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम घोषित कर दिया जाता है और उसकी फिर शल्य चिकित्सा कराई जाती है। उसका जीता जाता उदाहरण मैं हूँ। शायद डॉक्टर इकबाल सर, रॉबिन सर भी जानते हैं कि 2017 में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी कि मैं बैठ उठ खड़े भी नहीं रह सकता था, टोटल बिस्तर पे बेड रेस्ट था। 3 दिन तक मुझे इंजेक्शन लगाए गए। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया, XYZ डॉक्टर है रिगल टाकिश के वहां, कि आपको 8.5 लाख रुपए का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मनोस्थिति को मजबूत करा। बचपन से मेरा जो जीवन शैली थी वो बहुत भगवान की कृपा से, माता पिता और गुरुओं के आशीर्वाद से बहुत अच्छी थी। तो आपके सामने हूँ, मेरी कोई शल्य चिकित्सा नहीं हुई। तो सर मेरा यही निवेदन है कि आसपास के सारे सिस्टम को देख के और हम थेरेपिस्ट की सलाह लेकर ही उस पर वर्क करें। तो इसमें से बहुत सारे आसन जो हैं 80% वो केवल मेरुदंड को प्रभावित करने वाले ही आसन मैंने बताए हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और कोई पार्टिसिपेंट जैसे कोई क्वेश्चन है? यशश्री। हेलो हाँ यश्री मैम। सर ज्योति मैम को है, ज्योति शर्मा मैम को। हाँ ज्योति मैम। जी मैम, ज्योति मैम बताएं। हाँ, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर जैसे मुझे ये पूछना है कि कंसंट्रेशन के लिए और ये आपने जैसे मत्स्य आसन आसन बताया है, तो इसको कितनी बार करना है मत्स्य आसन को? देखो हर आसन को स्टार्टिंग में तो एक ही बार करना चाहिए और केवल 30 सेकंड तक ही हमको प्रयास करना है रुकने का, है ना। जब हमारा शरीर धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगे तो 3 मिनट तक हम एक पोजीशन में रुक सकते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन है वृक्षासन। सबसे पहला आसन जो होता है, जैसे वृक्षासन होता है, हमने हाथों को ऊपर करा और ये मैं दिखा रहा हूँ नीचे कोशिश करके कि ये एक पैर को जंघा मूल पर लगाया, है ना, दिख रहा है सबको, विजिबल हो रहा है? जी सर। ये जंघा मूल पर लगाया और दोनों हाथों को हमने योगियों को देखा है कि साधना में लगे रहते हैं। इतना ज्यादा टाइम तक आप एक जगह दृष्टि रखकर इस पर खड़े रहोगे, बैलेंसिंग आसन इसको बोला जाता है। वो कॉन्सेंट्रेशन के लिए, हमारे लिए, बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल है और साथ में मेरुदंड के लिए और ग्रीवा प्रदेश के लिए बहुत फ्रूटफुल है ना। दूसरा, आपने कॉन्सेंट्रेशन की बात करी तो मैं थोड़ा सा योगाभ्यास से हटकर साइंटिफिक एक्सरसाइज की बात करूं तो हमको बचपन में कराते थे किसी समय में। मैं आपको बता रहा हूँ, क्रॉस हैंड से दोनों कानों को पकड़ें, क्योंकि यहाँ पर जो नर्व्स है वो हमारे माइंड मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे जो कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे फ्रूटफुल होती है। तो जब फुर्सत में हो हम इस तरह से उठक बैठक करें 10 बार, 15 बार, 20 बार, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है कॉन्सेंट्रेशन के लिए और मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए और न्यूरॉन्स के लिए कि वो सॉल्यूशन इंप्रूवमेंट हो जाए। और जितने भी बैलेंसिंग आसन है, एक पाद प्रसार आसन है ना, वृक्षासन, ठीक है, नटराज आसन और मत्स्य आसन, ये चारों आसन बहुत फ्रूटफुल है हमारे कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। नेक्स्ट। और कोई पार्टिसिपेंट जैसा कोई क्वेश्चन है? Yes, sir. जी यस मैम। Sanjay sir, first of thank you so much for such a wonderful session. Sir, my question is, आपने सर जो स्लाइड्स में जो एक श्रृंखला रखी, तो हमें क्या योगासन उसी सीक्वेंस में करना चाहिए या हम इंटरचेंज कर सकते हैं एज पर आवर कन्वीनियंस? वेरी गुड क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। मैंने उस समय बहुत कम शब्दों में इसको यूज करा था। क्या होता है कि जब हमारी बॉडी की पोजीशन यदि बैक हो रही है तो हमको उसको वापस से पीछे की तरफ ले जाना। एक इसको उदाहरण से समझते हैं कि यदि
कोई टेप है, नल है, उसमें कचरा फंस जाता है, किसी कोई ऐसी चीज से कचरा फंस जाता है, तो हम पहले उसको ताकत लगाते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं, ऊपर और नीचे घुमाते हैं ताकि वो कचरे का फ्लो बाहर हो जाए। तो सेम बॉडी का स्ट्रक्चर है कि यदि थेरेपिस्ट के हिसाब से समझें तो सीक्वेंस के हिसाब से करेंगे तो हमें फायदा 100% मिलेगा, पर यदि सीक्वेंस बिगड़ता है तो फायदा 90% मिलेगा। फायदा नहीं होगा ऐसा हम बोल नहीं सकते हैं। एक हमारे माइंड की ऐसी दशा हो जाती है कि एक भी आसन को साध लेते हैं तो वो उतना ही फ्रूटफुल होता है जितना कि सारे आसन को साधने से होता है ना। तो ट्विस्टिंग, बेंडिंग और टर्निंग, ये तीनों चीजें बहुत फ्रूटफुल रहती है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ गूगल शीट पे बनना है, मैं आज लिंक कर दूंगा, तो जी आप सब लोगों जी सर, जरूर करें सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। ओके पार्टिसिपेंट जिन्हें कोई क्वेश्चन है? हेलो सर। जी हेलो सर, मैं मेरा नाम रितेश यादव, विशिष्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम। सर मेरा ये क्वेश्चन था, आपने जो मस्तिष्क और मनोभाव के ऊपर जो बनाया था, तो मतलब जैसे अपने जैसे कभी भी कुछ काम वैसे कर रहे हो तो माइंड में मतलब ऐसे दूसरे जो ख्याल आते तो उसके लिए मतलब ऐसे क्या करना चाहिए, जैसे उसके लिए क्या मेडिटेशन होना चाहिए? देखो, सबसे बेस्ट चीज तो ये है कि सूक्ष्म व्यायाम और योगाभ्यास आपको 10 सूर्य नमस्कार तो सबसे पहले करना ही चाहिए, सबसे पहली चीज सूक्ष्म व्यायाम और सूर्य नमस्कार को एंजॉय करो। उसके बाद 5 मिनट प्राणायाम पर दो, 5 मिनट प्राणायाम पर दो। कपालभाति हो, भस्त्रिका हो, अनुलोम विलोम हो, नाड़ी शोधन हो, वो कुछ भी हो। 10 आसनों की लिस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं ह्यूमन नेचर है, ठीक है, इस समय विचारों का आगमन बहुत ज्यादा होता है। तो इस समय युवाओं को सबसे पहली चीज हमारे को सूर्य नमस्कार करना है, और सूर्य को मंत्र के साथ करते हैं तो कई गुना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और उसके बाद हम 5 मिनट के लिए शवासन और 5 मिनट के लिए कोई सा भी एक प्राणायाम, अनुलोम विलोम ही कर लें, कुछ भी ना करें, तो डेफिनेट न केवल आपके विचार और ख्याल नेगेटिव है वो रिमूव होंगे, पॉजिटिव एनर्जी और मेमोरी का इंप्रूवमेंट होगा। मैं लिखित में चैलेंज के साथ दे सकता हूँ। साथ ही युवाओं का भटकाव 18 साल से 21 साल के दरमियान या इससे ऊपर की एज में है ना, थोड़ा सा हम ब्रह्मचारी की तरफ अपने आप को मोटिवेट करें तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य हमने बनाया है उसको हम बहुत सरलता से पा सकते हैं। तीसरी चीज, अभी एक सर ने हमारे से पूछा था श्वास प्रश्वास का रेशो क्या होना चाहिए। तो जब हम फुर्सत में बैठे, कोई प्राणायाम नहीं करना है, कोई ध्यान नहीं करना है, कोई योग नहीं, बैठे, श्वास ली, 2 अनुपात में होल्ड करी, 1 अनुपात में वापस छोड़ दी, 1:2:1 हर 1-2 घंटे में कर लिया। जब हम फिजिकल बॉडी को सुंदर बनाने के लिए 4 बार कंघा कर सकते हैं तो श्वास प्रश्वास को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत अच्छे से। जरूरत क्या है हमारे माइंड मैप में कि जितनी तेज और तीक्ष्ण बुद्धि हमारे मस्तिष्क की हो, उतना ही तेज और ओज हमारे शरीर के अंदर हो, राइट? थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, sir. Now, because I think is the we have taken much more time, and there's a heavy raining is taking place, thunderstorm in Indore. Most of the part of the city electricity की availability थोड़ी दिक्कत में है, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लैपटॉप की बैटरी भी जा रही होगी। तो now I request our managing director Dr. Naveen Naran to kindly sum up to say a few words. नवीन सर। मेरे भी लैपटॉप की बैटरी थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क में। थैंक यू सो मच संजय सर, एक तो आप आए, ये बहुत अच्छा लगा, आपने अपना टाइम दिया विशिष्ट परिवार को पुनः, जिसका आप भी एक हिस्सा रह चुके और आज भी हैं, हमारी स्मृतियों में तो है ही हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। और ये तो बोलने की बात ही नहीं सर कि नॉलेज आपका काफी इन डेप्थ है, ये शायद मतलब आपसे ऐसे आपकी क्लास अटेंड करने का मौका पहली बार मिला और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। आई एम वेरी थैंकफुल इकबाल सर को कि उन्होंने कितना अच्छा लेक्चर अरेंज किया। क्वेश्चंस भी बहुत डीप आए, मतलब मेरे कॉम्प्रिहेंशन से ज्यादा डीप क्वेश्चंस थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सब लोगों ने उसको एंजॉय किया। और
आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अगर अपन अपने बालों को दिन में 4 बार कंघी कर सकते हैं एक सुंदर शरीर के लिए, तो एक सुंदर मन के लिए, मेरे हिसाब से एक सुंदर आत्मा के लिए इट इज ऑल अबाउट। एक तरफ कुणाल ने सिखाया था हाउ टू गेट अ ब्यूटीफुल बॉडी, और एक तरफ आप सिखा रहे हैं हाउ टू गेट अ ब्यूटीफुल सोल। तो मेरे ख्याल से योग सिर्फ शरीर से और इम्यूनिटी से रिलेटेड ना होकर सोल से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के बारे में एक पूरी एक अलग ही साइंस है ये। पूरा तो मेरे ख्याल से समय का अभाव आपको बहुत बड़ा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपने बहुत संक्षिप्त में समझाने की कोशिश की, पर लेकिन आपने बहुत अच्छे से समराइज किया उसको और बहुत अच्छे से उसको। एंड मेरे को सबसे अच्छा लगा कि आपके इस पूरे उसके अंदर आपने कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया कि देखिए 15 आसनों का ये सेट है और उसके बाद में 5 आसनों का कूल डाउन का ये सेट है, या जिसको हम बोल सकते हैं कि ये फिनिश ऑफ करने का ये सेट है। तो वो बहुत अच्छा है। और मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा थोड़ा इन चीजों को अपनी लाइफ में आए। आपके मन की एकाग्रता नॉर्मल योग करने से ही बढ़ जाएगी। श्वास प्रश्वास तो एक उसके ऊपर आइसिंग ऑन द केक आ जाएगा। नॉर्मल योग करे, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करे और अपने आप को स्वस्थ रखे इस काल में। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास अटेंड करके। धन्यवाद सर, धन्यवाद। Thank you, Mas. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Now I request Professor Yogesh Vakare to propose vote of thanks. नमस्कार सर, आवाज आ रही है? रॉबिन सर जी सर, जी सर। नमस्कार, मैं योगेश वकार, सहायक प्राध्यापक योगेश वकार, विशिष्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नवीन नारंग सर एवं एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर SM अनस इकबाल एवं पूरे विशिष्ट परिवार की ओर से आज के हमारे मुख्य अतिथि एवं योग गुरु डॉक्टर संजय माहेश्वरी जी के हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर अपने विभिन्न योगासनों एवं योग विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए एवं हमें मार्गदर्शित किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप भविष्य में भी इसी प्रकार से हमें मार्गदर्शित करते रहे। सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत। एवं विशिष्ट टॉक के अंतर्गत ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नवीन नारंग सर एवं एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर SM अनस इकबाल सर का ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एवं साथ ही इस सेमिनार से जुड़े सभी छात्र एवं प्राध्यापकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद। सभी का वंदन और अभिनंदन। धन्यवाद। Thank you so much, everybody. Thanks a lot to all the participants.